Hello, students. We are going to learn the practical sessions for your 12th standard now onwards. As we know about all the practicals are named as SOP, that means skill oriented practicals. For this year, we are going to acknowledge or enclose only the 12 skill sets are there. So students should file the minimum 12 skill sets from the SOPs as follows. The first one, advanced web designing. From that entire index, we only have to take any 5 practicals. Then digital marketing, any 2 we have to take. Then computerized accounting with GST, from that we only have to take any 3 of them. And last one, the database concept using LibreOffice base, any 2 practicals we have to take. So in general we only have to take the 12 practicals for your entire this year. Now we are going to start with advanced web designing. So first of all, check for the index. First one, creation of a website using HTML5. SOP2, create a web page using HTML and CSS code to design a web page as the layout displayed below. SOP3, create a website using HTML and CSS code to design the web page. SOP4, creation of a website using HTML5 and CSS. Again, remaining ones are SOP5, use of an audio on the web pages using HTML5. SOP6, use of video on web pages using HTML5. SOP7, navigation on an image using a client-side image mapping in a web page using HTML5. So these are the index of the several practicals. Those are there under the term advanced web designing, and from that practicals only we have to take 5 practicals, and that should be enclosed in our file as well. Now here we are going to start with our SOP first. Creation of a website using the HTML5. For that we have to follow these instructions and make the HTML pages to make the website. Okay, now I'm going to read the entire statement for that. Create a website using HTML5 and CSS using any 4 CSS properties. Write a code for 2 separate pages having a different file name, such as first page as in dex.html, second page as in page2.html, as a form.html. Use any theme such as college profile or company profile. Every page must contain the proper meta information and design the web page as follows. See here, statement हमारा क्या है? SOP फर्स्ट. अभी तक अगर देखा जाए तो हमें ये 12th के लिए ओके एंड 12th IT के लिए जो फाइल मेंटेन करनी है उसके अंदर सिर्फ होंगे 12 प्रैक्टिकल. ओके, एंड 12 प्रैक्टिकल में 4 जो मेनली स्किल सेट है उसमें से हमको जो हमारा फर्स्ट वाला आता है उसका नाम क्या है? एडवांस वेब डिज़ाइनिंग. उसमें से जो मैंने पहले इंडेक्स एक्सप्लेन किया वो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे, लेकिन उसमें से हमें सिर्फ कितने लेने हैं? ओनली 5. ओके, एंड ओनली 5 में से ये जो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल रहेगा. ओके, सो और ये उसका जो स्टेटमेंट है वो मैं आगे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी. सी हियर, लेकिन जो फाइल तुमको जो मेंटेन करना है उसमें तुम्हें एंटायर जो तुम्हारा स्टेटमेंट है वो लिखना पड़ेगा. ओके, ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो सिर्फ आधा ही एक्सप्लेनेशन है, आधा जो स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा. सी हियर,
Then again, SOP1. Now, remaining statement includes the index page must contain the heading which is highest among other text on the pages and must be at the center of the page. There must be a paragraph which introduces general information about the theme chosen. Must have at least three physical style tags and one image with alternative text. This page must be connected to other two pages with the proper navigational link. सेकेंड जो उसका जो हाफ पार्ट है उसका एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट ये पूरा के पूरा एंटायर स्टेटमेंट होना चाहिए. नाउ द सेकेंड पेज मस्ट कंटेन द फीडबैक और एनरोलमेंट फॉर्म related with the theme chosen with feature of HTML5. The form must contain the text element and the email address of the company or the person, including the submit button. ये पूरा के पूरा SOP1 का स्टेटमेंट है. जब भी तुम्हें जो फाइल होगी उसमें तुम ये जब नोट डाउन करोगे, यू हैव टू नोट इट डाउन एंटायर स्टेटमेंट, जैसे मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम दैट प्रीवियस स्लाइड एंड ये वाली स्लाइड है. पूरा के पूरा तुम्हारा स्टेटमेंट है. हर एक कि कैसे हर एक 2 पेजेस तुमको चाहिए, 2 पेजेस कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं ये मैं सिखाऊंगी आगे. नाउ वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. First one, SOP first, creation of the website using HTML5. मतलब हमें क्या करना है, we have to make simple the website, okay? Single web page and the entire website मतलब क्या होता है, एक पेज उसे हम क्या बोलते हैं, while using the HTML code we have to after execution of this code हम लोग फॉर्म कर सकते हैं न्यू वेब पेज. ऐसे बहुत सारे जब पेजेस हम एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं देन वी हैव टू फॉर्म द वेबसाइट. ओके, अभी ये जो SOP फर्स्ट है हमें इसमें सेम काम करना है. वी हैव टू बिल्ड द वेबसाइट. ओके, इसलिए वी मस्ट रिक्वायर मिनिमम 2 वेब पेजेस. सी हियर, create a website using HTML5 and CSS using any 4 CSS properties. मतलब क्या, हमें एक वेबसाइट जनरेट करना है, ओके, और उसमें CSS की एनी 4 प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं. सी हियर, अभी CSS के 4 प्रॉपर्टीज़ जो चाहिए हमें वो कहाँ पर मिलेंगे, उसका चार्ट में दिया था जो भी मेरा जो फर्स्ट जो वीडियो है CSS के ऊपर. ओके, इन जनरल CSS सिंटैक्स क्या होता है एंड मेनी मोर प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स रिस्पेक्टिव वैल्यू वी कैन अप्लाई. उसमें से सिर्फ तुम लोगों को 4 प्रॉपर्टीज़ चूज़ करने हैं. ओके, नाउ राइट अ कोड फॉर 2 सेपरेट पेजेस हैविंग द डिफरेंट फाइल नेम सच एज. मतलब तुम लोगों को दोनों पेज क्या करना है, 2 पेजेस क्या करना है, डेवलप करने हैं बेस्ड ऑन द HTML. 2 पेज क्या करना है, डेवलप करना है. ओके, फर्स्ट पेज का नाम फॉर एग्जांपल हम लोग एलोकेट करते हैं फर्स्ट पेज एज index.html. ओके, सेकेंड पेज होना चाहिए पेज 2.html और तुम्हें form.html लिखना है तब भी इट्स ओके, बिकॉज उसका जो सेकेंड पेज का इंटेंशन क्या है, टू सेट द फॉर्म और टू गिव द फीडबैक फॉर्म और टू गिव द एनरोलमेंट फॉर्म. ओके, ठीक है, एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन द थीम यू चूजन. जो थीम तुम लोगों ने चूज़ किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्म ही होगा जो भी सेकेंड पेज के लिए एप्लीकेबल है. वो may be according to your theme, it may be the enrollment form for the new admission or it may be the the feedback form also. Okay, now use any theme such as the college profile or the company profile. तुमको इसमें से कौन सी थीम अच्छी लगती है उसकी इंफॉर्मेशन तुम इनक्लोज कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, वो तुम चूज़ कर सकते हो. ओके, नाउ एवरी पेज मस्ट contain the proper meta information and design web page as follows. अभी हमें और क्या करना है, डीप में जाना है कि हर एक जो पेज है उसकी प्रॉपर मेटा इंफॉर्मेशन होनी. Now we are going to start with creation of the website using HTML. Okay, here HTML में हमें क्या करना है, we have to make 2 pages. Okay,
ओके नाउ इन दैट फर्स्ट पेज वी हैव टू मेक, अभी हम जो हमारा दो पेजेस है, एक का नाम हमने असाइन किया है, एक index.html रहेगा, दूसरा हमें इन जनरल फॉर्म को ही जनरेट करना है जिसका नाम हम देंगे form.html और page2.html। स्टार्ट विद द index.html जो हमारा फर्स्ट पेज होने वाला है ये प्रैक्टिकल के लिए, ओके उसमें भी required the several things, okay, and we are going to start with it. That index page must contain the heading which is the highest among other text on pages and must be at the center of the page। मतलब हमें क्या करना है, इंडेक्स पेज जो रहेगा, जो फर्स्ट पेज रहेगा हमारी क्या वेबसाइट का, उसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें इंक्लूड करना है द हाईएस्ट अमंग द टेक्स्ट, जो हेडिंग होता है H1, H2, H3, H4, H5, H6, उसमें से जो हाईएस्ट रहता है वो कौन सा हाईएस्ट है, इट इज़ H1। तो H1 यूज़ करना है, जो टेक्स्ट हम लोग एलोकेट करेंगे, जो नाम हम असाइन करेंगे वो आना चाहिए सेंटर में। तो H1 के साथ जो एट्रीब्यूट आएगा वो क्या होगा, सेंटर इज वो होगा अलाइन। अलाइनमेंट शुड बी एट द सेंटर, बिकॉज हमें जो भी टेक्स्ट तुम वहाँ पर प्रिंट कर रहे हो, जो कोई कंपनी का नाम रहेगा, जो एक कॉलेज का नाम रहेगा, वो प्रिंट करना है ना, वो तो उसका जो टेक्स्ट फॉर्मेट है वो सबसे, जो फॉन्ट साइज सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, अलाइनमेंट सेंटर में आना चाहिए। ना there must be the paragraph which introduces general information about the theme chosen must have at least 3 physical style tags। अभी ये tags क्या है, see here in the last year we all have seen about the various style tags। for example एक italic है, bold है, underline है, small है, big, then subscript, superscript, okay। जो ये हम लोगों ने लर्न किए हैं ये सारे इसमें एनलिस्टेड है, और तुम लोगों को इसमें से सिर्फ 3 टैग्स, स्टाइल टैग्स यूज़ करने हैं, ओके। एंड अलॉन्ग विद दैट तुम्हें जो थीम तुमने चूज़ की है उसकी इंफॉर्मेशन भी एनक्लोज करनी है, बट इन बिटवीन द पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर इट विल रिक्वायर द पी टैग ओपन, पी टैग क्लोज, एंड इन बिटवीन दीज टैग्स यू हैव टू एनरोल द इंफॉर्मेशन ऑफ योर थीम, बस। नाउ एंड द वन इमेज विद द ऑल्टरनेट टेक्स्ट, एक इमेज तुमको वहाँ पर इंक्लूड करना है जो थीम तुमने चूज़ की है, ओके वहाँ पर इमेज होनी चाहिए। एंड इमेज के लिए होता है img स्पेस सोर्स src इज इक्वल टू जो उसका नाम रहेगा, सेम फोल्डर में तुम्हें वो सेव करना है, ओके। नाउ एंड अलॉन्ग विद द alt, ये तुम्हें एट्रीब्यूट यूज़ करना है, alt टैग शुड बी देयर टू रिप्रेजेंटिंग द ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ये हो गया। नाउ एट द एंड we have to connect to make the interaction in between the 2 pages। ये जो हमारा फर्स्ट पेज है इसी के ऊपर हमें क्या करना है कि interaction with the second page we need to enroll the link, okay। अगर लिंक हमें एनरोल करना है, नेविगेशनल लिंक भी एनरोल करना है, तो वो आता है while using the a tag। a tag के साथ we must require the mandatory attribute, वो होता है रेफरेंस। हम क्या देंगे, a होता है href के आगे क्या होगा, जो तुम्हारी लिंक होगी, कि फॉर एग्जांपल मेरी जो सेकंड लिंक है, सेकंड पेज ओपन होना चाहिए ना, तो उसका नाम मैं वहाँ पर एलोकेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल a स्पेस href इज इक्वल टू page2.html और form.html, ओके। नाउ सी हियर आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दीज ऑल द रिक्वायरमेंट्स, मेरा पेज ऐसे शो होना चाहिए। सी हियर जो फर्स्ट जो नाम है वो क्या है, प्रतिभा जूनियर कॉलेज, वो मेरा क्या है, इट इज़ शोइंग द हाईएस्ट फॉन्ट साइज़ में है, यहाँ पर मैंने H1 यूज़ किया है, अलाइनमेंट सेंटर में है। देन एक पैराग्राफ मुझे चाहिए था जो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो इंफॉर्मेशन क्या है, मैंने यहाँ पर एनक्लोज किया है, जो इनिशियली 3 स्टेटमेंट से वो इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3। अगेन आई रिक्वायर द 3 क्या थे, फिजिकल स्टाइल टैग जो यूज़ करना है, ओके। तो मैंने एक किया है वो इटैलिक है, देन बोल्ड है, एंड देन क्या अंडरलाइन भी है। तो तुमको और स्टाइल टैग भी यूज़ करने तब भी तुम यूज़ कर सकते हो। देन स्टेटमेंट में ये एनरोल किया था कि वहाँ पर एक इमेज भी होनी चाहिए जो थीम के ऊपर बेस रहेगी, तो थीम के ऊपर की बेस जो इमेज है मैंने एनरोल की है ना। एंड लास्ट में कि एक नेविगेशनल लिंक होनी चाहिए जो जाती है सेकंड पेज को ओपन करने के लिए, तो वो नेविगेशनल लिंक भी है।
ये पूरा लेआउट आना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर HTML का कोड रिक्वायर है, दैट कोड इज़ लाइक दिस, सी हियर। एंड अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था, हर एक पेज में वहाँ पर मेटा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो तुम लोगों ने लर्न किया है एट दैट इनिशियल सेशंस ऑफ माइंड, ओके। अगर तुम लोगों को अभी भी वो रिकॉल करना है, लर्न करना है, तभी मेरे इनिशियल जो 1-2 वीडियोस है वहाँ पर मैंने मेटा टैग का यूज़ क्या है, वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, विथ एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू would like to go there, you can see the entire session over there, okay. Now we will start with our code, okay. See here, जो कोड है सिंपल सा कोड है, तुम लोग देख सकते हो, और खुद क्या करो और प्रैक्टिस करो। यहाँ पर नाम चेंज कर दो, जो कंटेंट है वो चेंजेस कर दो, और टैग्स तुम यूज़ कर सकते हो, ओके। लेकिन बेस ऑफ द थिंग वी हैव टू अप्लाई द CSS एंड द मेटा इंफॉर्मेशन, जो हमने इन दिस ईयर वी लर्न अबाउट इट, ओके। ये हमने न्यू सीखा है ना, तो वो हमें पहले यूज़ करना है। सी हियर, आई हैव बीन यूजिंग द मेटा इंफॉर्मेशन इन द नेम ऑफ द ऑथर, डिस्क्रिप्शन एंड द कीवर्ड्स। मेटा नेम, ये मेरा उसका एट्रीब्यूट होगा। मेटा टैग मैंने 3 लाइन्स, सी हियर लाइन नंबर 5, 6, 7, मेटा टैग आई हैव बीन यूजिंग फॉर द नेम, द ऑथर, एंड देन कंटेंट क्या है, वो मेरा नाम आएगा, नेम। अगेन डिस्क्रिप्शन क्या है, कंटेंट। अभी क्या डिस्क्रिप्शन है, तो ये क्या है, इट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ यूर फर्स्ट SOP। जो तुम्हारा फर्स्ट SOP है उसका क्या है, ये फर्स्ट है ना पेज, तो इसी के लिए ये आएगा मेटा इन्फॉर्मेशन, मतलब डेटा की इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, इसे बोलते हैं मेटा इन्फॉर्मेशन, और मेटा टैग यही इंडिकेट करता है। देन थर्ड वन, मेटा नेम, वो होते हैं कीवर्ड्स, एंड द कंटेंट आर, इसमें हम लोग क्या सीखे हैं, वी आर लर्न अबाउट द HTML5, द फर्स्ट प्रैक्टिकल एंड ऑल द कंसेप्ट ऑफ HTML। यहाँ पर तुमको जो कीवर्ड्स एनरोल करना है, जो हम लर्न कर रहे हैं, लर्न करने वाले हैं, वो सारे आते हैं कंटेंट में। जो कीवर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे वो तुम इधर एनरोल कर सकते हो। नाउ द मेन इम्पॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस SOP1 का जो फर्स्ट पेज है, वो उसमें क्या आएगा, वी हैव टू एनरोल द स्टाइल टैग वाइल यूजिंग द CSS यूज़ करना है ना। नाउ हियर आई हैव बीन 4, उन्होंने क्या बोला था, यू हैव टू अप्लाई द 4 स्टाइल प्रॉपर्टीज़, CSS प्रॉपर्टीज़ तुम्हें अप्लाई करना है। फर्स्ट वन मैंने लिया है क्या, बॉडी, देन H1, देन P एंड A, ओके। ये मेरे सिलेक्टर्स है, ओके। बॉडी टैग, जब मैं स्टाइल के अंदर CSS क्या करती हूँ, CSS इंक्लूड करती हूँ, ओके, डिफाइन करती हूँ, तो वो वहाँ पर मेरा वो हो जाते हैं नेम ऑफ द सिलेक्टर। जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट जो सिलेक्टर है उसका नाम क्या है, बॉडी, सेकंड का H1, थर्ड का P एंड लास्ट का A। तो 4 स्टाइल प्रॉपर्टीज, CSS प्रॉपर्टीज मैंने अप्लाई किए, बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड इन आवर स्टेटमेंट, ओके। ये हो गया द फर्स्ट वन। See here, I have applied the property, the background color for the body section in the name of aqua, okay। मतलब क्या, बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो aqua होना चाहिए। देन मेरा सेकेंड जो सिलेक्टर है उसका नाम है H1, उसके लिए आई हैव बीन चूजन द कलर रेड, मतलब H1 में जो भी कंटेंट रहेगा दैट शुड बी प्रिंटेड इन अ रेड कलर। देन द थर्ड सिलेक्टर इज P, द फॉन्ट स्टाइल इट शुड बी इन अ इटैलिक फॉर्मेट, मतलब P में जो भी कंटेंट रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, पैराग्राफ रहेगा, दैट शुड बी प्रिंटेड इन अ इटैलिक मैनर। लास्ट वन ए टैग के ऊपर मैंने क्या किया है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इधर कोई भी डेकोरेशन होना चाहिए है क्या, नलीफाई होगा, ओके। तो इधर मैंने 4 CSS प्रॉपर्टी क्या किए, डिक्लेयर किए, इन बिटवीन द स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज एंड इन बिटवीन द हेड सेक्शन, मतलब ये आ जाता है, इट इज़ द इंटरनल टाइप ऑफ द CSS, ओके। ये बात ध्यान में रखो, भूलो मत। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बॉडी सेक्शन ऑफ अवर HTML पेज। अभी उसके अंदर जो सिलेक्टर्स मैंने ऊपर उसके जो स्टाइल प्रॉपर्टीज़ एलोकेट किए हैं, वही हमें नीचे जो कंटेंट है उसके ऊपर अप्लाई करना है, ओके। नाउ स्टार्ट विद द H1 अलाइन शुड बी सेंटर, कि जैसे अलाइनमेंट उसका सेंटर होना चाहिए। नाम जो हमने प्रिंट किया है वो क्या है, प्रतिभा जूनियर कॉलेज। ये हो गया जो सेकेंड सिलेक्टर है मेरा।
नाउ द थर्ड वन वो क्या है, पी मतलब पी टैग ओपन पी टैग क्लोज, लेकिन उसके अंदर क्या है, वी हैव टू राइट डाउन द इंफॉर्मेशन ऑफ अवर थीम, थीम की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पर एनरोल की है। एंड अलॉन्ग विद दैट आई नीड टू यूज़ द 3 क्या थे फिजिकल स्टाइल टैग आई हैव टू यूज़, तो वो भी जो स्टाइल टैग है मुझे यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है, एक है बोल्ड, एक है द बिग, और लास्ट वन जो है वो है यू। यू मतलब वो होता है अंडरलाइन, ओके। इसमें एक एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है मेरे थीम की वो मैंने एक एक सिंगल जो सेंटेंस में रिप्रेजेंट की है, ओके। देन लास्टली आई हैव बीन क्लोज द p tag. Now I am going to start with the image that I have to include in my first page. वो होता है img src फर्स्ट, ये जो मेरा जो भी मेरी इमेज रहेगी उसका नाम है क्या कि 1.jpg। अभी उसके साथ क्या होना चाहिए, alt जो टैग मतलब क्या है, the alternative name should be there while representing the alt, ओके। ये एट्रीब्यूट है, ओके, ये बात भूलो मत। img ये क्या है, ये है टैग, src होता है उसका first attribute I have been chosen and alt is the second attribute of img tag, वो मैंने include किया है, उसका नाम क्या होगा, it is the college image। now the last जो requirement है for this first page वो होना चाहिए a href is equal to, मतलब हमें सेकेंड जो पेज है उससे भी क्या करना है, इंटरेक्शन करना है ना, वो इंटरलिंक करना है, तो वहाँ पर मुझे सेकेंड पेज का नाम देना पड़ेगा, उसका नाम क्या है, page2.html। एंड देन वो तो लिंक होने के बाद जो तुम्हारा पेज है वहाँ पर ये मैसेज आना चाहिए कि द क्लिक हियर फॉर द सेकेंड पेज, ये वहाँ पर प्रिंट होगा। एंड देन मुझे ए टैग इधर क्लोज करना पड़ेगा, ओके। समझ में आया सबको, ये जो प्रोग्राम है इट इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट पेज ऑफ अवर SOP1। Now we are going to start with our second page. Second page must contain the feedback or enrollment form regarding with the theme chosen with the feature of HTML5। मतलब क्या है, सेकेंड पेज जो होगा वो सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा, इट मे कंटेन द फीडबैक और द एनरोलमेंट फॉर्म। अभी इट विल डिपेंड ऑन यू कि तुम्हें अगर जो फॉर्म जनरेट करना है उसकी थीम तुम्हें अगर जैसे एक नॉर्मल सा एनरोलमेंट फॉर्म करना है न्यू एडमिशन के लिए तब भी चल सकता, और जो फीडबैक फॉर्म तुम्हें जनरेट करना है तब भी तुम लोग चूज़ कर सकते हो ना। द फॉर्म मस्ट कंटेन द टेक्स्ट एलिमेंट एंड द ईमेल एड्रेस ऑफ द कंपनी और द पर्सन। एनरोलमेंट फॉर्म होगा तो भी उसका टेक्स्ट एलिमेंट वहाँ पर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए तुम्हारी कंपनी का और द पर्सन का ना। एंड इंक्लूड द सबमिट बटन। सेकेंड जो पेज है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है, जस्ट जो जितने भी हमने जो हमारे इनपुट टैग्स रहते हैं, ओके, इनपुट टाइप्स जैसे क्या होता है, टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट बॉक्स, देन टेक्स्ट एरिया होता है, ओके, सिलेक्ट है, ऑप्शन है, देन क्या रेडियो है, ओके, ड्रॉप डाउन बॉक्स वगैरह सब जो भी तुम्हें इंक्लूड करना है तुम इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन क्या है मैंडेटरी, they require the text element and the email address of the company and the person, and third thing they require to include the submit button। बस इतना ही क्या करना है, enroll करना है। see here now so after executing these statements from the second page, हमारा जो second page है वो ऐसे दिखाई देना चाहिए। the feedback form, ये नाम आएगा, enter your name बिकॉज क्या है टेक्स्ट एलिमेंट है तो वो आना चाहिए, देन एंटर द ईमेल आईडी, उधर भी क्या चाहिए, मेल आईडी के लिए एक स्पेस रहेगा, देन सबमिट बटन शुड बी देयर, एंड लास्ट में और एक नेविगेशनल लिंक होनी चाहिए जो हमें है क्या है फर्स्ट जो पेज है उसके ऊपर भी लेके जा सकता है, तो वहाँ पर क्या आना चाहिए, क्लिक हियर टू द फर्स्ट पेज, ओके। अभी ये जो लेआउट है वो रन करने के लिए वी मस्ट रिक्वायर द कोड, वो कोड में हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, सही है। As we all are seen in that first page of the statement of entire SOP1 that they must require the meta information for the both the pages, मतलब दोनों भी पेजेस के लिए कि मेटा इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए, ओके। सो मेटा इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर एलोकेट की है। एंड देन टाइटल क्या होगा, द कॉलेज प्रोफाइल जैसे तुम्हें रखना है, जो थीम चूज़ करोगे उसके ऊपर, अगेन द नेम, द ऑथर, देन जो नाम रहेगा दो ऑथर तुम चेंज कर सकते हो, ओके, देन मेटा नेम,
डिस्क्रिप्शन द कंटेंट सेकेंड पेज ऑफ द फर्स्ट SOP, मतलब ये ही हमारा सेकेंड पेज है SOP का. नाउ मेटा नेम ये क्या है, कीवर्ड्स है, उसके क्या कंटेंट आते हैं, HTML5 द फर्स्ट प्रैक्टिकल वन HTML. तुम और ज़्यादा भी अगर जो कीवर्ड्स है वो इंक्लूड करना चाहते हो तो इंक्लूड कर सकते हो. ओके, नाउ स्टार्ट विद द स्टाइल टैग्स. जो आप अगर जो टैग्स यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो. इधर मैंने चूज़ किया है द बैकग्राउंड कलर फॉर द बॉडी. यहाँ पर मैंने 3 सिलेक्टर्स लिए हैं. उसका नाम क्या है, द बॉडी सिलेक्टर, H1 सिलेक्टर एंड A सिलेक्टर. इनसाइड माय स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज. सी हियर द लाइन नंबर 8, 9, 10 एंड 11. ओके, उधर देखो मैंने सिर्फ 3 सिलेक्टर यहाँ पर चूज़ किए हैं. जो भी उसका स्टाइल डेफिनेशन हुआ है वो होना चाहिए, वो मैंने इंक्लूड किया है. H1 टैग, टेक्स्ट अलाइन शुड बी सेंटर, द बॉर्डर इज द आउटसेट, मतलब जो फीडबैक फॉर्म जो वहाँ पर प्रिंट हुआ था उसकी बॉर्डर क्या थी. अगर तुमने उसकी बॉर्डर अगर ध्यान से अगर देखते हो तो वो इट लुक्स लाइक इट गिव्स द 3 डायमेंशनल. ओके, तो वो बॉर्डर तुम सेट कर सकते हो. नाउ द थर्ड A सिलेक्टर इज, उसका क्या होना चाहिए, द कलर शुड बी ब्लैक. अगर नॉर्मली देखा जाए तो क्या होता है, नेविगेशनल लिंक अगर हम एलोकेट कर रहे हैं तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है. लेकिन हम यहाँ पर अगर नहीं करना है तो उसका कलर क्या है, ब्लैक सेट कर सकते हैं. स्टाइल टैग क्लोज कर दिया. देन जो हेड सेक्शन है वो भी क्लोज करना है बिकॉज इट इज़ अगेन द पार्ट ऑफ द और द टाइप ऑफ द इंटरनल CSS. नाउ हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव द नेम H1, द फीडबैक फॉर्म H1, एंटर द नेम. नेम के यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स का क्या होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. एंटर द ईमेल ID, जैसे हमने लर्न किया है ईमेल ID इट कम्स फ्रॉम द एडवांस इनपुट टाइप, जहाँ पर हम देंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल. ओके, मतलब उसका जो एक फॉर्मेट एक क्या पैटर्न होना चाहिए वो होना चाहिए. फॉर एग्जांपल abc@gmail.com, मतलब इधर @ सिंबल भी चाहिए, ये क्या है मस्ट है, एंड डॉट सिंबल भी चाहिए. इसी के जो फॉर्मेट के लिए वहाँ पर एडवांस इनपुट टाइप ईमेल हम लोग यूज़ कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट होना चाहिए, तो वहाँ पर सबमिट है. एंड लास्ट में एक लिंक होनी चाहिए जो लिंक करती है हमारे फर्स्ट पेज के साथ. उसके लिए वी मस्ट रिक्वायर href इज इक्वल टू page1.html, जो हमारा फर्स्ट जो पेज हमने बनाया ना इंडेक्स का, उसका नाम है. एंड क्लिक हियर फॉर द फर्स्ट पेज, ये हमारा फर्स्ट पेज पे ये लिंक जानी चाहिए. ओके, एंड देन बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज. सो इट इज़ द इन जनरल HTML5 कोड फॉर द सेकेंड पेज. सी हियर, ये पूरी एक साइट हमारी हो चुकी है बनके. ये बनने के बाद उसका फर्स्ट पेज ऐसे ही आएगा जिसका नाम है, हमने क्या लोकेट किया था, index.html. सारे इन डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि जैसे तुम कि ये कोड कि जब रन करते हो नीचे एक लिंक आनी चाहिए जो तुमको लेके जाएगी ये वाले जो सेकंड वाला जो पेज है उसके ऊपर, जहाँ पर देखो फीडबैक फॉर्म का जो ये प्रिंट हुआ है उस पर हमने उसकी जो प्रॉपर्टी है क्या सेट की है, वो है द आउटसेट, मतलब इट लुक्स लाइक अ 3 डायमेंशनल इमेज. उसके ऊपर वो क्या हुआ है, वो प्रिंट हुआ है. देन वी एनरोल द सर्टन फॉर्म कंट्रोल्स हियर, वो है 3 जो हमने किया है. एक है टेक्स्ट बॉक्स के लिए, दूसरा ईमेल के लिए, एंड थर्ड है सबमिट बटन. और उसके साथ हमने एक लिंक भी दी है जो हमें लेके जाएगी फर्स्ट पेज पे. I hope you understand this SOP1, the first practical of your syllabus, your IT syllabus. Okay? और अगर कोई डाउट्स होगा तो ये सेशन होने के बाद आप मुझे ये डाउट पूछ सकते हो. SOP1 में हमें क्या बनाना है, क्रिएशन ऑफ द वेबसाइट वाइल यूजिंग द HTML, जहाँ पर 2 पेज बनाना है. 2 पेज बनाना है लेकिन क्या है 4 CSS प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने हैं. ओके, एंड जो भी स्टेटमेंट है वो मैंने एनरोल किया है. हर एक जो स्टेटमेंट है इन डिटेल एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. थैंक यू.